100 students have got into, more than 80% are not philosophy background. So background is not important. Yes, what is important? You should be ready to think. I am the one who wants to kind of mug up things. मुझे बस दे दो मैं रट लूँगा. तो honestly उसके लिए तो नहीं है. You only need 3 things. Understanding, conceptual clarity, वो आप मेरे पे छोड़ दो. संस्कृत is not a big deal. हाँ, if you have interest, if you do a lot of revision, वो वैसे ही याद रह जाता है. देखो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज खुद से पढ़ना ना, इट्स ऑलवेज डेंजरस. एक क्वेश्चन 6 बार रिपीट हो चुका है और गारंटीड है कि एवरी अल्टरनेट डे वो आएगा. एप्रोप्रिएट वर्ड मेक्स अ बिगर इम्पैक्ट देन लेस एप्रोप्रिएट वर्ड. यू नो नीड टू बी स्पेशलिस्ट इन एनीथिंग बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पेशलिस्ट अनलेस यू प्रैक्टिस समथिंग. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथी IAS. वेलकम टू फिलोसॉफी ऑप्शनल. My name is Vishwajit. I hope you would already have known me, seen me somewhere. Anyway, so this has been a kind of repeatedly asked question to me, that while choosing philosophy as an optional, there is a kind of hesitation. Okay, reason being, people think, is philosophy suitable? Am I eligible? What are the prior requisites or prerequisites that are required to be there, prior training, some kind of academic training or otherwise, any orientation with respect to philosophy, is it required? Okay, what is the kind of this topic is, in the sense, will it kind of bombard me with lot of jargons? Am I suitable for that? Is it too analytical, too abstract? This is also one of the major fears. So I thought, okay, let's at least kind of dismantle this philosophy optional in front of the students, and then obviously they will be able to decide in a better way, I would say, or clearer than what they had already known, whether to go for this. And for whom this philosophy optional made for, किसके लिए है, who can go for it, who cannot or should not go for it. I will tell both the things. I will also kind of warn you who are the kind of students who should never go for this option. Yes, I'm going to say that also, and obviously I'm going to say in what way, who can go and how you can approach. But obviously I'm not going to take a lot of time, as in not going to discuss everything in detail. Only basic question is, who can choose philosophy optional? Obviously for the UPSC I'm talking about predominantly. Okay, so let us start. Let us try to de-layer things and try to understand. देखते हैं क्या है. ठीक है. Now the questions student ask, yes, as I mentioned already, can I take philosophy optional if I have never studied philosophy? Very, I would say, very sensible question. Okay, I am absolutely not against the question itself. In fact, it is the most sensible question to be asked before you start. Okay, that I am an engineer, I am a science graduate, I am some other history graduate, for example, or some other thing. I am MBA. Okay, I have done graduation in statistics. Okay, obviously I am a doctor, whatever. And should I go for philosophy? Now, see, you need to understand one thing. If you have got this question in your mind, the first requisite, I would say, and perhaps the only requisite, main, crucial, background, I would say, एक बोलते हैं ना, एक तैयारी जो है, एक एट्रीब्यूट, एक ट्रेट जो आप में होना चाहिए, ऑलरेडी है. क्या है? इंटरेस्ट. आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ है, आपके सामने वो रिवील हुआ है, दैट दिस इंटरेस्ट्स मी. एंड माइंड यू, फिलोसॉफी का सबसे बड़ा, इतना फेमस अभी भी है, इसका एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ही यही है कि वो इंटरेस्टिंग है, अपीलिंग है, इंटेलेक्चुअली अपीलिंग है. इंडियन, बीइंग एन इंडियन, हमारे लिए भारतीय होने के नाते, तो इट्स ऑल द मोर अपीलिंग बिकॉज वी आर वेरी गुड एट इट. इन फिलोसॉफी वी आर वेरी गुड एट इट. स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी. तो ये एक तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसमें I would not ridicule the question at all, that will be a crime. But my point is, the moment if you are feeling that question, that shows half of the answer is already done. कुछ तो आपको यू नो फिलोसॉफी की तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, दैट यू आर सर्टेन लाइकिंग इट, द कॉन्सेप्ट लाइक गॉड एंड रियलिटी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, दीज थिंग्स, मेनी थिंग्स आपने इधर उधर से कहीं सुना होगा, आत्मा, परमात्मा, ठीक है, ब्रह्म, देन बुद्धिज्म some aspects, Jainism, soul, jiva, you might have heard things from here and there, आस्तिक, नास्तिक, तो एंड थोड़ा बहुत मे बी, आई एम श्योर थोड़ा बहुत सिलेबस और ऐसा कुछ यू वुड हैव गॉन थ्रू, इवन इफ यू आर नॉट, इट्स नॉट एन इशू. तो इसका क्या है, कैन आई टेक फिलोसॉफी ऑप्शनल इफ आई हैव नेवर स्टडी फिलोसॉफी? नंबर वन, द बेसिक रिक्विजिट इज इंटरेस्ट, दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर, दैट्स द रीजन द क्वेश्चन इज बॉदरिंग यू. ठीक है, नाउ इसका कारण क्या है पता है? लोगों को ऐसा लगे फिलोसॉफी ऑप्शनल इज ओनली फॉर फिलोसॉफी ग्रेजुएट्स. नो, obviously it is not just for philosophy, you see any other options, okay, and all the more for philosophy, because I'll tell you, I think next slide is going to say the same, that most of the successful candidates, toppers from this particular optional are not from philosophy BA MA. They are engineers, doctors, even science, other science graduates, BSc, obviously other BA graduates, somebody would have done, as I said, history or some sociology also, and they have a lot of interest here, they go for philosophy. Law graduates are also there, many of my students are like that, and they are very good at it. So most of the students, because of the lack of this awareness, the statistics, basic statistics, it's not somebody's opinion. आप देखो रिजल्ट्स देखो, आपको पता चल जाएगा, जो भी टॉपर्स हैं उसमें से आपको मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आपको नॉन फिलोसॉफी बीए में मिलेंगे. ठीक है, तो वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इफ आई हैव नॉट डन फिलोसॉफी. हाँ, इंटरेस्ट होना चाहिए फिलोसॉफी में, वो बहुत जरूरी है, वैसे सभी ऑप्शनल में जरूरी है. फिलोसॉफी इज वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट इट इनहेरेंटली. आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है, फिलोसॉफी आपको खड़ा ही नहीं करेगी, यू विल नॉट बी एबल टू इवन स्टैंड नियर इट. फिलोसॉफी का वो है, फिलोसॉफी विल नेवर डू डिसेप्टिव गेम्स, कि इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको लगेगा ले सकते हो, नहीं. फिलोसॉफी इज नॉट ओनली सुपरफिशियली अट्रैक्टिव, नो, थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए एक. एंड व्हाट डू इंटरेस्ट मीन हियर? ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, डीप थिंकिंग होता है, उसके लिए थोड़ा अप्रिसिएशन होना चाहिए कि हाँ यार ये कुछ है. इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम. पीपल आर सिटिंग एंड डिसाइडिंग थिंग्स. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज kind of decided by some thinker, said somebody long back. Some ideas are the things who are running the world. बाकी उसका implementation वाला वो बहुत बाद की बात है. तो if you have even a slightest appreciation and obviously kind of उसको हिंदी में बोलते हैं ना अहमियत, कि ये these are cardinal questions that are running society, creating issues, solving issues, whichever way, like God, theology, कैसे एक थियोलॉजी दूसरी थियोलॉजी से अलग है, मेटाफिजिक्स का क्या रोल है रिलीजन में, रिलीजन का रोल कल्चर में. तो ये सब चीजें जो है आपको थोड़ा बहुत भी उसके यू हैव एन इंक्लिनेशन, नो नीड टू वरी अबाउट इट, दैट इज द बेसिक थिंग. बाकी इफ यू सी अदर, मतलब बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफी, यू कैन कंपेयर इट विद सम अदर थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग कि फिलोसॉफी है या तो फिर कोई और एक्स वाई जेड और ऑप्शनल अवेलेबल है, कैसे करूं? तो उस केस में ऑब्वियसली कंपेरेटिव ही होगा. तो फिलोसॉफी में सब जगह आपको थियरीज, देखो जो ह्यूमैनिटीज के हमारे ऑप्शनल्स हैं उसमें सब जगह आपको थिंकर्स है, थियरीज है, टर्म्स है, जार्गन्स है, एनालिटिकल थिंकिंग है. फिलोसॉफी में क्या है, ऐसे टॉपिक्स पे हैं जो अदरवाइज थोड़ा इंटरेस्ट करती है, आत्मा, परमात्मा, सोल, कि क्या बोल के गए इतना, व्हाई दे हैव सो मच ऑफ इवन टुडे इन्फ्लुएंस, व्हाई शंकराचार्य इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई गौतम बुद्ध इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई वर्धमान महावीर इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई डेकार्ट इज so important, I think therefore I am, why Wittgenstein is so important, why Plato, Aristotle is still being talked about. So obviously socio-political thinkers, John Rawls, Amartya Sen, Rousseau, because we study in the paper too. And obviously what are the proofs for the existence of God, soul, what is this problem of evil, does God exist? You might have recently encountered that viral debate. So these questions are there. However you try to kind of ridicule it,
जब आप अकेले होंगे ना, इट विल काइंड ऑफ नॉक योर डोर कि यार ये भी तो क्वेश्चन, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस. Existentialism is a very interesting philosophy. Okay, what is existential anxiety means? And that anxiety is not an emotional anxiety. It is talking about the existential anxiety because death is there. Okay, whatever you do, death is there. Okay. Anyway, so I'm just giving us, kind of a trailer kind of thing as to what are the discussions that have been done here. So, question: the reality, what we see in UPSC preparation is the many successful philosophy aspirants come from engineering, medical, commerce, science, and law. I already told you, overwhelming, but because I will not hesitate to say it will be more than 80%. Philosophy optional, if 100 students have got into, more than 80% are not philosophy background. Okay, UPSC syllabus begins from fundamentals. It assumes no prior degree, absolutely no prior degree. And by the way, even if you see other optionals, so background is not important. Yes, what is important, you should be ready to think, you should be serious about, obviously UPSC you should be serious about, you should be able to think, you should be able to receive, you have to keep your mind open and absorb new terms and terminologies and things like that. Okay, so obviously UPSC assumes zero background. You start with definitions, concepts, basic arguments. Obviously everything will be explained. Like, it's not that I'll be like, I take foundation classes also, obviously so I'll not just straight away start using idealism. In fact, it's not just about those terms. Philosophy makes you think of any other term that you are using, even normal life also. If you are saying materialism, materialistic, capitalism, philosophy inside you will tell you, what do you mean by it? Capitalism, ism means theory. What is this theory basically? And what is the difference between theory and the practice? And then, capitalism, socialism, Marxism, part of the syllabus, if you can open the syllabus. So, every important word would be kind of, asking you to think deeply about it. And you cannot just take it for granted. That's basic nature of philosophical mind and which gets developed. So, in fact, वही काम है. So, ये हर चीज, consistent practice, then revisions, conceptual clarity, हो गया काम खत्म. उसके लिए कोई प्रायर इसकी जरूरत नहीं है. हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि I am the one who wants to kind of mug up things. मुझे बस दे दो, मैं रट लूंगा. तो ऑनेस्टली उसके लिए तो नहीं है फिलॉसफी. जैसे मैंने बोला, मैं वो भी बताऊंगा कि किसके लिए नहीं है फिलॉसफी. ठीक, वो भी देखेंगे आगे. और सो yes, as I was mentioning, only 3 skills: understanding, your conceptual clarity has to be there, reasoning, logical flow thinking. वो फिलोसफी का बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी वही है एंड हैबिट ऑफ स्टडिंग भी वही रखनी है. इंटरेस्टिंगली देखो, हम कोई चीज और पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं, लॉजिकली सोचो, है ना. साइंस कोई भी और पढ़ते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं लॉजिकली सोचो. फिलोसॉफी में लॉजिकली सोचो और थिंक लॉजिकली मीन्स व्हाट, इसका ही तो डिस्कशन हो रहा है वेस्टर्न फिलोसॉफी में. व्हाट इज लॉजिकल एटॉमिज्म, व्हाट इज लॉजिक, व्हाट इज रैशनलिज्म, हाउ रैशनलिज्म एंड लॉजिक इज डिफरेंट. It is different to be rational, different to be logical, different to be scientific. उसका भी अपना definition है. What is the difference between logical and being scientific? Scientific means evidence based. Logic may not need evidence. So there are some rational proofs for the existence of God. Descartes gives. But वो scientific proofs नहीं है, rational proofs हैं. आप बोलेंगे science और rationality एक ही तो है. No, ऐसा नहीं है. This is exactly what philosophy is. Okay? So you only need 3 things. अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो आप मेरे पे छोड़ दो, एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वही करते हैं, उनको समझ में भी आ जाता है. दूसरा है, जब आप व्हेन यू विल रिसीव थिंग्स, आपका भी अपना लॉजिकल वो डेवलप हो ही जाता है वैसे, बिकॉज वो ठोक ठोक के मेरा काम ही होता है वो करना लेक्चर में. एंड देन राइटिंग आंसर्स, वो तो ऑब्वियसली इसमें रिविजन तो है ही, आंसर राइटिंग यही है और कुछ नहीं है. तो आपको कुछ राइटअप मिलेगा, पहले तो लेक्चर होगा, एक पिक्चर बनाया जाएगा कि शंकराचार्य लाइक अहम ब्रह्मास्मि मीन्स व्हाट, तत्वमसि मीन्स व्हाट, उसका अहम का मतलब क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, व्हाट एग्जैक्टली ही मेंट बाय अहम ब्रह्मास्मि. इज इट सेम लाइक आई एम सेइंग आई एम एन इंजीनियर, अहम इंजीनियर अस्ति, ये बोलना और अहम ब्रह्मास्मि, दोनों में क्या फर्क है. ठीक है, तो वो
एक बार क्लियरिटी आ गई, पिक्चर एक बार बन गया, यू नो, प्लेटो का थियरी ऑफ आइडियाज है फॉर एग्जाम्पल. सो व्हाट डू प्लेटो मीन बाय आइडिया? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड. व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल मीन्स? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसेंडेंटल एंड एम्पिरिकल? ये सब चीजें डिस्कस होती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा. सो अंडरस्टैंडिंग इज लाइक 90%, even 95% is all lecture class. You listen to me, you'll understand. Then you reasoning means when you receive you're thinking. ठीक है, उसमें भी I'll push you, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो सब होता है. And then writing. So philosophy में as I said वो नहीं चाहिए क्या कि मैंने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, doesn't matter. If you are able to have or able to kind of, you know, come up with these things, these skills, understanding, reasoning and writing, absolutely okay, no problem at all. Okay, what is not required? Obviously one of the fear people have, sorry, संस्कृत words होते हैं बड़े बड़े, no need to worry about it. यूपीएससी ने कोई वो मैंडेटरी नहीं करा, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू राइट, स्पेलिंग आगे पीछे हो जाता है, जैसे धर्म लिखते हैं कभी धर्मा लिखते हैं, वो कोई इशू नहीं है. कुछ कुछ तो और डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, ऐसे बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक है प्रतीत्य समुत्पाद. नाउ आपको प्रतीत्य समुत्पाद लिखना है. इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स तो एक बार प्रतीत समुत्पाद लिख के बैक में P.S. लिखते हैं, है ना, PS, आगे आंसर में PS लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई उनका. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु गॉट सिलेक्टेड. सो एक बार क्लैरिफाई कर दिया. तो संस्कृत इज नॉट अ बिग डील. हाँ, इफ यू हैव इंटरेस्ट, इफ यू डू अ लॉट ऑफ रिविजन, वो वैसे ही याद रह जाते हैं. ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं. नो प्रायर रीडिंग ऑफ प्लेटो, कांट, उदाहरण प्लेटो, कांट, हुएवर, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है तो और अच्छा होता है, बिकॉज वो प्री कंसीव्ड नोशन लेके आप नहीं आते, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग हुआ है. देखो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज खुद से पढ़ना ना, इट्स ऑलवेज डेंजरस. इसलिए लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई भी रिलीजियस बुक्स हैं, अकेले में खुद से पढ़ के, अनलेस यू कैन एक्चुअली लिसन टू समबडी हु हैज अंडरस्टूड इट फ्रॉम अ कंटेक्स्ट, वो जनरली स्क्यूड अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, एंड इट कैन बी डेंजरस, बिकॉज वो रिलीजियस बुक है, आप उसको मोर देन अपनी लाइफ मानते हैं, तो उसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें मिस इंटरप्रिट हो. तो इसलिए है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल की चीजें के लिए थोड़ा गाइडेंस की जरूरत होती है. बट द मोमेंट यू गेट द गाइडेंस, इट इज इनफैक्ट इजियर देन एनी फैक्चुअल थिंग्स. नो मगिंग ऑफ फैक्ट्स, डेट्स, लाइक वो ऑब्वियसली फिलोसॉफी का सबसे बड़ा पॉइंट यही है. ओके, कोई फैक्ट याद ही नहीं रखना, जैसे हम GS 1 2 3 में ये याद रखना, ये नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नो GDP, दिस दैट, ये कुछ नहीं है. थॉट्स है बस, आइडियाज हैं. Once you get into it, and because of this what happens, no, मतलब नॉर्मली बहुत बच्चों का होता है ना कि पहले अटेम्प्ट में तो नहीं होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट. तो एक आध 1.5 साल देने के बाद तो फिर होता क्या है, once you are done with this, no, you are not required to anything to update. आपको बस वो समझ में आ गया, हाँ बस जाके रिवाइज करो, हो गया, सब याद आ गया. क्योंकि इट्स मोर लाइक एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, एंड इफ यू अंडरस्टूड इट एंड इफ यू रिवाइज्ड इट बिफोर, दैट्स ऑल. तो उसमें कोई फैक्ट्स नहीं, नया थोड़ा सर्वे आया है उसको इनकॉर्पोरेट करना, कुछ नहीं करना है, बस उसी को बार बार पढ़ना है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चीजें जरूरत नहीं है. जैसे पहला क्वेश्चन था कि और मेरा फिलोसॉफी कभी नहीं पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल फ्लो एंड योर एबिलिटी और योर डिसीजन टू स्टिक टू आंसर राइटिंग हार्ड वर्क. ठीक है, एंड देन दिस संस्कृत वोकेबलरी, डिफिकल्ट टर्म्स, उसको कोई फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या है ना, तो उबरमक मतलब क्या है, ऐसे टर्म्स, नो नीड टू वरी, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन वॉट एवर इट इज, यू नो, कोई ये करने की जरूरत नहीं है. Why philosophy is UPSC friendly? This most of you would already know that, short and well defined, literally well defined. It's not just a term. इतना well defined है कि उसके बाहर ना UPSC जाती है ना आपको जाना है. And well defined practically, you know what does it mean? अगर हम बोल दे प्लेटो, तो ये 6 पेजेस हैं फॉर एग्जाम्पल, नोट्स, इसके बाहर का कभी आया ही नहीं है, ना कभी आएगा. एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द टॉपिक्स. क्यों? उसमें कुछ है नहीं. प्लेटो ने जो बोल के रखा है, उसको जो सिलेबस के पॉइंट दिए, थियरी ऑफ आइडियाज, थियरी ऑफ सब्सटेंस, खत्म, उसका क्रिटिसिज्म. तो उसके बाहर का क्या ही आएगा? जो प्लेटो है, आप क्वेश्चन पेपर देख लो, दे हैव नॉट आस्क्ड, यू नो, प्लेटोज आइडियाज इन द 21st सेंचुरी इंडिया, ये सब नहीं होता. What did Plato say? How Aristotle criticized it? Elaborate. Khatam. So in that way, it is, you know, indeed and perhaps honestly, genuinely well defined syllabus. ठीक है, static है,
करंट लेस क्या है ही नहीं, बस पेपर 2 में थोड़ा वो जो सोशो पॉलिटिकल का डेमोक्रेसी वगैरह है ना, जो आप वैसे भी पेपर 2 GS 2 में पढ़ते हैं, वो वाला पार्ट है, ठीक है। रिवीजन में हाई रिटर्न्स मतलब ये देखो ना, आपको इफ यू नो, सी इफ यू नो दिस अराउंड 600-700 पेजेस, ठीक, यू रीड इट 2-3 टाइम्स, टोटल पेपर 1 पेपर 2 लाइक जितने मार्क्स का ना 500 मार्क्स चाहिए, तो उतने पेजेस पढ़ने हैं बस आपको। एंड व्हेन यू रीड अगेन एंड अगेन, उसको कुछ टाइम ही नहीं लगता बाद में, यू नो, बिकॉज नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, यू रीड, you listen to the lecture, you read the notes, you understand partial thoda, then you revise, okay, then you revise. After that what happens, you'll end up picturizing the page, बचता ही नहीं कुछ, कितनी बार पढ़ेंगे, and then you will have your small notes, वो ऑटोमेटिकली होता है, इट्स नॉट अ बर्डन, वो ऑटोमेटिक आपको लगेगा अरे ठीक है इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट हैव माई ओन। तो फिर वो 7-8 पेजेस का प्लेटो था, वो एक पेज में 1.5 पेज में हो जाता है। And that is exactly what you would need, you would wish to have after your GS 1, 2, 3, 4 is done and you're waiting for next 5 days for your optional paper during the mains। वो 5 दिन जो होते हैं ना, फिलोसॉफी का रिवीजन 5 बार हो जाता है उसमें ही, if you have done it prior। तो everything, literally everything can be fixed, only thing is you have to open the thing, read, understand, underline, keep it, come back again, read, understand, underline, keep it, and obviously answer writing whenever। so very very high written, मतलब इसमें ऐसा है ना कि जैसे जनरली जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल है, इतना वास्ट है, तो आपने ये वाला एरिया पढ़ लिया अराउंड 200 पेजेस, हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। फिलोसॉफी में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल ही 600-700 पेजेस है, और हर कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ तो आएगा। वो जो है ना कि आप यू रेड बट नथिंग केम, ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज फिलोसोफर के कोई वो डिस्ट्रिक्ट फैक्ट डिस्पर्स्ड फैक्ट्स नहीं है, यूनिफॉर्म फिलोसॉफी है। तो आपने ये पढ़ लिया और यहाँ का भी क्वेश्चन आ गया तो भी यू कैन लिंक इट बिकॉज यू अंडरस्टूड इट। आप समझ रहे, इसलिए रिवीजन बिकम्स वेरी वेरी हाई रिटन बिजनेस, हाई रिटन थिंग। And in fact, there is nothing else. Once you understand in the class, revision is the only thing, obviously, apart from answer writing. Answer writing becomes easier with practice. You know that because fixed style. एक एक क्वेश्चन 6 बार रिपीट हुआ है। ह्यूम्स व्यूज ऑन कॉजिशन, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी ऑफ अरिस्टोटल। एक क्वेश्चन 6 बार रिपीट हो चुका है और गारंटीड है कि एवरी अल्टरनेट डे वो आएगा। तो अराउंड 20%, 25%, इवन 30% क्वेश्चंस आउट ऑफ 500 आपको पहले ही प्रेडिक्ट होंगे, थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा चेंज करके, हाँ ये आएगा, लिखना वही है, थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। तो ओवरलैप का तो ठीक है, वो है पॉइंट, बट मैं उसको ज़्यादा ये नहीं करता। सी ऑब्वियसली इट हेल्प्स, एसे में तो आपको पता ही है कि आजकल तो ऑल द 8 एसेस आर कमिंग एज एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल एसेस। एथिक्स में भी वो सीधा मदद करता है, बिकॉज मॉरल पॉलिटिकल थिंकर्स है, कोट्स हैं, ठीक है, तो उसमें और आपकी जो वोकेबलरी थोड़ा सा क्लीन अप हो जाती है, थोड़ा रिफाइन हो जाती है। तो ऑप्शनल तो ही, एंड इंटरव्यू में बहुत, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई हैव बीन इन्वॉल्व इन द इंटरव्यू प्रोसेस ऑल्सो, इट हेल्प्स अ लॉट इफ यू डू इट प्रॉपरली। इट हेल्प्स बिकॉज आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं, जार्गन्स आ जाते हैं, यू नो व्हाट वर्ड टू बी यूज्ड, बिकॉज यूसेज ऑफ वर्ड व्हेन यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। appropriate word makes a bigger impact than less appropriate word. It happens, okay, so it helps there also, ठीक है। Who should avoid? I was just mentioning, see, किसको नहीं लेना चाहिए फिलोसॉफी, सीधी बात, जिसको प्योरली फैक्चुअल सब्जेक्ट चाहिए, फैक्ट्स दे दो मुझे, मैं जाके लिख के आऊंगा, मेमोरी बेस्ड ऑफ, फिर थोड़ा सा फिलोसॉफी में दिक्कत होगी, सीधी बात। आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ डिसीव यू इन दैट वे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको अनकंफर्टेबल लगता है कि भाई नहीं ये क्या पता नहीं, आत्मा वात्मा नहीं है, अपन तो चिल, आप सिंपल चीजें बताओ मुझे, जीएस टाइप नहीं, फिलोसॉफी में दिक्कत होगी, ठीक है। इफ यू डिसलाइक रीडिंग एंड राइटिंग, ऑब्वियसली अगर आपको पढ़ना ही पसंद नहीं है पर से, है ना, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेटमेंट लग रहा है फिर भी उसको पढ़ रहे हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ओके क्या बोलने की चाह रहा है, व्हाट द पर्टिकुलर थिंग द कोट इज ट्राइंग टू सी। तो इफ यू डोंट हैव दैट लॉजिकल स्टैमिना कि नहीं यार मुझे सिंपल बताओ, मुझे समझ में आ गया तो आगे, फिर फिलोसॉफी नहीं है। थोड़े तो आपको सोशलिज्म अगर बोले तो यू शुड बी एबल टू इमेजिन कि क्या है, ये थियरी है, उसका प्रैक्टिस है, उसके कुछ मॉडल्स है,
यू नो यू नीड टू एबल टू थिंक कि हाँ इसके ये एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे हर चीज में मैं उदाहरण दे रहा हूँ बस। आत्मा बोला तो व्हाट डू यू मीन बाय आत्मा? Now, what is the difference between Atma and essence? What is Atma and soul same? Is religion and dharma same? Is madhab and dharma same? इस ये जो क्वेश्चंस बॉदर की जिसको करते हैं उसको लेना चाहिए। जिसको लगे यार ये सब क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आप डेटा दो, कुछ फैक्ट्स दो, कुछ चार्ट वार्ट दो, मैं रट के जाके लिख के आऊंगा, फिलोसॉफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑल अदर्स यू कैन एब्सोल्युटली कम फॉर दिस। ओके, सो फिलोसॉफी ऑप्शनल इज फॉर थिंकर्स नॉट स्पेशलिस्ट। ये मैं एडिशनली इसलिए लिखा हूं, देखो यू नो नीड टू बी स्पेशलिस्ट इन एनीथिंग बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड स्पेशलिस्ट अनलेस यू प्रैक्टिस समथिंग। बिकॉज सिर्फ नॉलेज आने से आप स्पेशलिस्ट नहीं होते, यू हैव टू विजडम हैज टू बी डेवलप्ड। इतना हमें कुछ जरूरत नहीं होती। देयर इज अ डिफाइंड सिलेबस, देयर आर सम थिंकर्स, वेस्टर्न इंडियन दो ही हैं, फिलोसॉफीज है बुद्ध जैन, देन वेस्टर्न में जैसे विटगेनस्टाइन है, रसेल है, ठीक है, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज है, सात्र है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है। उनको समझो, उनके टर्म्स को समझो, उसका इंटरलिंक करो, रिवाइज करो, आंसरेट करो, खत्म। स्पेशलिस्ट नहीं बनना। इनफैक्ट I'll tell you जाते जाते one more thing, many students this and especially this happens with philosophy, एक थोड़ा गलती हो जाता है that interest तो है, so instead of they using the interest that they have, inclination, interest, instead of they using the inclination drives them, इंटरेस्ट है उनको खींच के ले जाता है, वो नहीं होने देना बस। और वो मैं क्लास में तो पूरा वो आई विल मेक श्योर कि वो नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ देखो कोई किताब कुछ नहीं, आई विल गिव यू नोट्स, आई नो दे आर लिटिल एग्जॉस्टिव, बट आप इधर उधर भटकेंगे ही नहीं, जो सिलेबस में वही पढ़ेंगे और वही जरूरी है। वंस यू गेट सिलेक्टेड यू डू पीएचडी, यू डू पीएचडी ऑन न्याय, पीएचडी ऑन वेदांता, नो प्रॉब्लम, अभी सिलेक्ट होना है। तो स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, थिंकर बनो, बस सोचो। You should be able to think, okay, and then you should be able to kind of revise, right answer and come up with this. Okay, so that's all I guess. I just wanted to communicate कि philosophy optional कौन ले सकता है, who can choose this. Anybody who is ready to think, excited to think, anybody who is comfortable with abstract concepts, anybody who would like to think about issues, abstract issues, metaphysical, cultural, religious issues, philosophical issues, at least ready to listen to it, they can certainly go for it irrespective of your background. इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं खुद इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे जो हैं सब इंजीनियर्स डॉक्टर्स ही हैं। एंड किसको नहीं लेना चाहिए? जिसको फैक्ट बेस्ड डेटा चाहिए, मगिंग अप करके जाके रिप्रोड्यूस करके आऊंगा, बस फिलोसफी उनकी नहीं लेनी है। जो सोचने के लिए रेडी नहीं है, दे जस्ट वांट टू ईट अप एंड देन वोमिट ऑन द पेपर, दैट काइंड ऑफ स्टफ उनके लिए नहीं है। Those who have little allergy with deep and broad concepts, especially जो philosophy में होते हैं, उनके लिए philosophy नहीं है। Rest all can certainly go for it. Okay, so all the very best to all those who are thinking, and hope to serve you, hope to teach you, hope to help learn you philosophy if you decide so. Thank you very much.